Ladies and gentlemen, we start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. In today's lecture, you people will be learning about criticism and literary criticism. You know, there is a literary theory and there is a literary criticism. There is a difference between two, but mostly people they are taking literary theory and criticism, they are both same. It's not same. There is a great difference between literary criticism and literary theories. We'll see one by one literary criticism and literary theory. And secondly, we'll be discussing about poetics by Aristotle. Prior to discuss poetic, we must discuss Plato as well. Plato has written Republic and reaction to this Republic. Aristotle has given befitting reply to his master, Plato. So, Plato, if you want to understand Greek literature, Roman Greek literature, it starts from Socrates. So, if we see Western philosophy is based on, Roman Greek philosophy. So, prior to understand Plato and Aristotle, we have to understand who was Socrates. So, this is, it's there is a term, SPA. SPA mean Socrates, Plato, and Aristotle. So they are student, they are teacher student. Like you are my student, and then further you are having your student, and we are having different opinions. In Roman Greeks, having different opinion is not bad because they were critic, they were literary people, and if you are holding different view from my view, it doesn't matter because having different view is not a wrong thing. But over here in our country, in our society, people started criticizing, people started blaming and saying and giving different tags and character assassination to that person who is holding and having different opinion. Having different opinion is not bad. So Roman Greek literature teaches us we should have different opinions, but this different opinion is having diversity. This different opinion is is a basis of knowledge. When you have same opinion, you are transferring same opinion to your student, and your student are further delivering same opinion to other, then there is no diversified knowledge. There will be only stagnant knowledge. To have a multiple kind of opinion, it's a kind of knowledge. This thing I've learned from Canadian Prime Minister. So I was listening to his speech. He said that in our country like Canada, there are many people, they are having different ethnic group, they are having different religion, they are having different color, they belong to different races, but we live with the beauty. We live with the unanimous opinion. We are living with the one nation. So this is good if you have a different opinion. That's what you learn from criticism. So further, what we are going to discuss, let me start from my today's topic. So today we'll be discussing about what is literary theory, difference between literary theory and literary criticism. We'll be talking about type of literary theories, and then we'll discuss old criticism and new criticism. Further, we'll be discussing about poetic summary and parts of poetics by Aristotle. As you know, Aristotle was a student of Plato. He learned many years from Plato's academy, and after learning from Plato, he's having some a different opinion. He said that what you call poetry is an imitation, and imitation is bad. Poets are bad. Poets are vile people. Poets are not good because poet mostly imitate things. They don't create something new, but they only imagine and copy of copy, because this world is already a copy according to Plato. A real idea was in the mind of the creator, and creator created all these things. Since it's already copy of copy and the poet is creating another copy, it mean it is a thrice away from reality. This word is not reality, and the thing related to this word, it's also a copy. So when word is a copy, the things on and the object on this word is also copy. So
What poet creates, it is thrice away from reality. Am I right? So according to Plato, this word is already a copy, and the object on this word is also copy of copy, and when poet creates another copy, it's a thrice away from the reality. प्लेटो ने कहा कि दुनिया के अंदर जो चीज मौजूद है, ये दुनिया ही एक कॉपी है, क्योंकि ओरिजिनल जो दुनिया है वो क्रिएटर के माइंड में है। जब ओरिजिनल दुनिया क्रिएटर के माइंड में है, तो जो चीज इस दुनिया के ऊपर हरकत कर रही है, जो चीज इस दुनिया के ऊपर मौजूद है, ये भी एक कॉपी की कॉपी है। और जब पोएट एक और कॉपी बना देता है, तो एक थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी वाला सीन बन जाता है। इसलिए पोएट्स जो हैं वो बड़े बुरे लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, कॉपी की कॉपी करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे वायल्स और बुरे आइडिया लिखते हैं, जिससे लोग मतलब इमोशनल लेवल पे बहुत हाई चार्ज हो जाते हैं, और उसमें इमोशनल रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, लवर बन जाते हैं, उसके बाद शराब पीते हैं, जंग लड़ते हैं लोग। बहुत सारी जंगें जो हैं वो पोएटिक मतलब उनसे आइडियाज लिए जाते हैं, और उन वॉरियर्स को, और जैसे हरकलीज है या एक्लीज है या हेक्टर है या पेरिस है या उसके अलावा ट्रॉय की वार है या हेलन ऑफ ट्रॉय की वार है, जो ये सारी वार्स जो हैं, एगमेम्नान की जो वार है, तो इस तरह जो बड़ी बड़े हीरोज थे उनको पोएट्री की शक्ल में लिखा जाता था। और प्लेटो ने कहा कि ये जितने भी पोएट्स हैं ये बुरे लोग हैं, और होमर को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। होमर जंगों के बारे में लिखता है, होमर आइडलाइज करता है सर्टन जो फाइटर्स हैं, उसकी वजह से हमारे यंग माइंड जो है वो भी खराब हो रहे हैं। तो ये किसने कहा? प्लेटो ने। ये अपनी उसने रिपब्लिक जो बुक लिखी उसके अंदर उसने डिस्कस किया। उसके बाद उसका शिगिर्द आता है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कहता है नो, ऐसा नहीं, कॉपी की कॉपी नहीं होती चीज। जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो हम अपने माइंड को भी यूज करते हैं। एक पोएट जब पीस ऑफ पोएट्री लिखता है या पोएम लिखता है, वो इमेजिनेशन को यूज करता है, अपनी क्रिएटिविटी से उसका एक राइम बनाता है, इसका स्ट्रक्चर बनाता है, और फिर उसको एक सर्टन पैटर्न के ऊपर ढालता है, और अपनी इमोशन साथ शामिल करता है, अपनी क्रिएटिविटी शामिल करता है, अपनी इमेजिनेशन शामिल करता है। तो ये सारी चीजें मिलकर मेयर इमिटेशन नहीं होती, इमिटेशन भी एक रिक्रिएशन है। फर्दर अरिस्टोटल ने कहा कि पोएट्री इज नॉट व्हाट इज एंड व्हाट वाज, रादर व्हाट ऑट टू बी। एक पोएट जो है वो आइडियल सिचुएशन बना के दे सकता है, गुड को जजा दे सकता है और बैड को सजा दे सकता है। बल्कि वो कहता है कि ये जो आइडियलिज्म की दुनिया है, ये जो पोएट्री की दुनिया है, या जो हमारी लिटरेचर की दुनिया है, इसमें तो हम लोगों को टीच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और उनको इस तरह की सिचुएशन बना सकते हैं जो नेचर भी नहीं बना सकती। नेचर में वो बताता है कि नेचर में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। बाजुकात बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, तो ऊपर से जलजला आया, सारे जो है गर्क हो गए। सैलाब आया, बहुत सारे अच्छे लोग भी साथ बह गए। लेकिन यहाँ पे गुड को कहता है कि गुड को जजा और बैड को सजा देना एक पोएट का काम है। तो पोएट्स जो थे, उन्होंने, जो रोमन ग्रीक्स थे, उन्होंने पोएट को कहा प्रॉफिट, उन्होंने पोएट को कहा क्रिएटर, उन्होंने पोएट को कहा मेकर। एक पोएट जो होता है वो क्रिएटर होता है, वो मेकर होता है, वो एक स्टोरी बना सकता है, उसमें करेक्टर बना सकता है। और पोएट्स ने इतने बड़े बड़े करेक्टर्स बनाए हैं जो नेचर भी नहीं बना पाई। एगमेम्नान, हरकुलीज, उसके बाद हेक्टर्स, अखलीज, हेलन ऑफ ट्रॉयज, so many more like writers, like characters poets have created through their imagination. So poetry is not an imitation of the word, as an imitation of objects, rather it is a recreation process. बिकॉज पोएट्री का मतलब ये नहीं होता कि क्या है और क्या था, ये तो फिर आपने कॉपी कर दिया एज इट इज। नो, पोएट्री आल्सो टीचेस एंड टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी। आइडियल कैसा होना चाहिए? एक बुरा शख्स है, वो लोगों को मारता फिर रहा है, लोगों को रेप करता फिर रहा है, लोगों को बिला वजह कत्ल करता फिर रहा है, क्या उससे सजा नहीं होनी चाहिए? तो एक पोएट उसको भी सजा देता है, वो सफर करता है, वो अपनी सजा को बर्दाश्त करता है, अल्टीमेटली सफर करता है, और उसकी डेथ भी होती है। तो एक पोएट के हाथ में है, वो जैसी चाहे दुनिया क्रिएट कर ले, करेक्टर जैसे ऐड कर ले, किस तरह की सिचुएशन चाहता है वो उसमें डाल ले, उसको मैनिपुलेट कर ले, और अल्टीमेटली गुड को जजा और बैड को सजा दे ले। तो पोएट्री डज नॉट मीन व्हाट इज एंड व्हाट वाज।
पोएट्री मीन व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। आइडियली सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, मॉरली सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। पोएट उसके अंदर इमोशन डालता है, पैशन डालता है, फीलिंग डालता है, क्रिएटिविटी डालता है, प्रोडक्टिविटी डालता है, और उसके साथ साथ इमेजिनेशन डालता है, और उससे कोई चीज न्यू जनरेट करता है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा जो मैंने डिस्कस किया है। खदीजा मुझे बताइएगा, ये जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं कि पोएट्री अरिस्टोटल के नजदीक ये है कि पोएट्री ये नहीं है कि जैसा है और जैसा था, जी। बल्कि पोएट्री तो ऐसी होती है कि वो आइडियल सिचुएशन भी बताती है, वो पोएटिक जस्टिस भी करती है कि क्या चीज कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए पोएट्री पोएट्री जो है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, इट इज अ क्रिएटिविटी, इट्स अ प्रोडक्टिविटी, इट्स इमेजिनेशन, और एवरीथिंग यू सी अराउंड यू, इट्स अ फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, इट्स फॉर्म्ड थ्रू इमेजिनेशन। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देख रहे हो, ये इमेजिनेशन से बनी है। मिसाल के तौर पर जहाज बनाने वाले ने सोचा कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस तरह का जो हवा में उड़ेगा, उसने कोई आइडिया सुना, सोचा, और उसके बाद उसने इमेजिन किया और उसने कहा ऐसे। तो जो भी हम करते हैं पहले हमारी इमेजिनेशन में वो चीज आती है, हम अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में उसे उतारते हैं, उसे एक ठोस किस्म की लॉजिक देते हैं। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, हमारा माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड इतना लॉजिकल है कि कोई भी चीज हमारा माइंड अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में उतरने नहीं देता जिसके पीछे ठोस लॉजिक ना हो। मिसाल के तौर पर देखिए, इंसान का माइंड इतना ऑब्जेक्टिव है, अगर आप नाकाम शख्स हैं तो वो आपको भी नीचे रखेगा अपने माइंड में, आपका ब्रेन अपना। अगर आप ऐसा करें कि एक कामयाब शख्स को सोचें तो उसका इमेज टॉप पे बना होगा, आपके माइंड में टॉप पे बना होगा कि यहाँ पे। अगर कोई फेलियर शख्स को देखे तो उसे यहाँ पे रखेगा। गौर से सुनिएगा ये बात। अगर एक नाकाम शख्स को देखो तो आपका माइंड इतना ऑब्जेक्टिव है, उसे यहाँ पे रखता है, टॉप पे। अगर नाकाम शख्स, अगर कोई कामयाब हो उसे टॉप पे, अगर फेलियर हो उसे नीचे। अगर आप अपना ही इमेज देखें तो उस शख्स के बारे में जो उस दुनिया का कामयाब तरीन शख्स है वो आपको नीचे रखेगा, उससे ऊपर रखेगा। आपका अपना माइंड, कभी सोच के देखिएगा। सेल्फ इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने ब्रेन में अपनी शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन अच्छी बना लें तो दुनिया के कामयाब शख्स आप बन सकते हैं। लेकिन आपको अलाउ ही नहीं करता आपका अपना माइंड कि आप अपने आप को सक्सेसफुल लोगों में रखें, क्योंकि आप अपने आप को एक इमेज बना के बैठे हैं कि सर मैं फेलियर शख्स हूं। जी बोले। सर माइंड के ऑब्जेक्टिव होने से क्या मतलब होगा? माइंड को अगर आपने क्लियर कोई चीज नहीं दी तो वो वहां तक उतरती नहीं। मिसाल के तौर पर आप ये कहती हैं कि आप अगर अपने माइंड को ये कहती हैं कि लेकिन मेरा सर माइंड तो खुद भी परसीव। माइंड खुद परसीव नहीं कर सकता। माइंड के मैंने आपको पार्ट्स बताए, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में चीज वही जी। उतरती है जो कॉन्शियस के फिल्टर से पास होके आगे जाती है। नहीं तो आप सारा दिन आपने हजारों लोग देखे होंगे, कहीं आप बाहर गए हैं तो हजारों लोग देखे। अब मुझे बताएं, जी। हजारों लोगों के इमेज आपके माइंड में क्यों नहीं रहते? देखे तो सारे ही थे। इसका मतलब है कि कॉन्शियस माइंड ने उनको फिल्टर से डिलीट कर दिया, अपना फिल्टर लगाया जर्नलाइजेशन का, और कहा ये लोग आम ही फिर रहे होते हैं, ये तो आम ही फिर रहे होते हैं। अगर कोई खास किस्म का बंदा बन मिल गया तो वो सब कॉन्शियस में उतर जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बाकी सारे तो आपने डिस्कार्ड कर दिया आपके माइंड के फिल्टर, वो क्यों नहीं गए अगर आगे। इसी तरह जब हम कोई चीज याद करते हैं तो अगर आप अपने माइंड को ये कहें कि एक दिन में आपने एक बुक पढ़नी है, तो आपका माइंड कभी, क्योंकि आपका माइंड बड़ा लॉजिकल होता है, वो क्या कहेगा, नहीं अब एक बुक तो पढ़ी नहीं जा सकती, वो आपको फिर कहेगा यार उठ के इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। इसलिए थोड़ा थोड़ा चंक्स में बांट के अगर देंगे ना आप डाटा अपने माइंड को, वो आसानी से परसीव कर लेगा। एक दिन में एक असाइनमेंट, अगर आप कहेंगे एक दिन में एक पूरी किताब पढ़ें, तो आपका, क्योंकि मैंने बताया कि माइंड बड़ा लॉजिकल और ऑब्जेक्टिविटी और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव डिसीजन देता है, सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं। वो तो आपका अपना इमेज, अगर आप फेलियर हो तो आपको फेलियर में रखा हुआ है उसने, देख लें आप अपने ब्रेन में, आंखें बंद करके देखें, कभी भी सक्सेसफुल के बराबर नहीं आपको रखेगा आपका अपना ब्रेन। तो इसलिए वही चीज अंदर जाएगी आपके ब्रेन के, वहां पे वही स्टोर होगी जिसके पीछे ठोस लॉजिक होगी, वो फिल्टर से आगे गुजर के जाएगी। हाँ जी कर सकता हूँ इतना सा, एक पैराग्राफ एक दिन में कर सकता हूँ, हाँ पूरी बुक नहीं हो सकती।
माइंड खुद ब खुद आपको फाइट और फ्लाइट मोड में लेगा। माइक ऑफ। लें जी, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब जरा हम चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन, मैंने अभी आपसे बात की कि व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी, व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हम इसका डिफरेंस देखेंगे, हम इनको वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास पोएटिक समरी एंड पार्ट ऑफ द पोएटिक्स। ये सारी चीजें हम अभी देखते हैं। ओल्ड क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। जब ये सारी चीजें आप सुन लेंगे ना, तो फिर बुक से पढ़ेंगे तो आपको याद होंगी। अगर आपने इनको नहीं समझा, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें नहीं उतारी, उसको एक लॉजिकल वे से नहीं गुजारा, तो आपको ये चीजें याद नहीं होगी। अभी मैं आपको बताता हूं। टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी। अच्छा, क्रिटिसिज्म को जब भी हमने पढ़ना है, बात याद रखिएगा, जब भी हम क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो एक चीज हम देखेंगे, ये जरा देखिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें फादर ऑफ क्रिटिक को देखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो वो हमारे पास है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो था वो उस्ताद उस्ताद था प्लेटो का। तो प्लेटो ने बहुत सारे अपनी बुक्स के अंदर जो सोक्रेटिक डायलॉग्स लिखे हैं, सोक्रेटिक नॉलेज जो है या सोक्रेटिक डायलॉग्स, उनको रिपीट किया है। वो कैसे? सोक्रेटिस एक क्रिटिक था और वो एक सॉफ्ट, एक मतलब एक पहला पहला क्रिटिक है। एक पहला उसे कहा जाता है कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म जिसको कहा जाता है। अच्छा जी, उसने किस तरह से, वो कैसे क्रिटिसाइज करता था? वो हमेशा चीजों को डायलॉग के जरिए, कोई भी बंदा कहीं से आ रहा है तो उससे डिस्कशन करता, कहाँ से आ रहे हो? तो वो आगे से वो बताता कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करके आ रहा हूँ। अच्छा, माँ बाप की जब खिदमत करते हो तो क्या मिलता है? तो वो आगे से बताता कि माँ बाप की खिदमत करने से खुशी मिलती है। अच्छा, खुशी क्या होती है? खुशी तो मुझे भी नहीं पता। तो वो सोक्रेटिस से पूछता कि सोक्रेटिस आपको पता है? तो सोक्रेटिस उसे कहता है यार मुझे भी नहीं पता, चलो मिलके तलाश करते हैं। ऐसे उसने बहुत सारे ग्रुप को इकट्ठा कर लिया था और वो क्वेश्चन करने लग गए थे एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को। उन्होंने कहा यार ये तो खतरा बन रहा है, ये तो लोगों को हमारे खिलाफ मोटिवेट कर रहा है, ये तो ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसको पूछना ही नहीं चाहिए। वो एक किंग को, उन्होंने किंग, उस वक्त के जो किंग थे उन्होंने सोफिस्ट रखे हुए थे, मतलब हायर्ड पीपल थे, और वो किंग की तारीफें करते रहते थे। वो उनसे पूछता कि भाई तुम इस किंग को क्यों मानते हो, इसको खुदा क्यों मानते हो, या ये जो बड़े बड़े तुमने मुजस्मे लगाए हुए हैं ये क्या देते हैं, ये तो बेचारे चल भी नहीं सकते। तो ये जो ग्रीक और ये वेजिटेरियन और ये जो मून गॉड और सन गॉड, ये क्या चीजें हैं? उस वक्त ये सोक्रेटिस इस तरह की बातें कर रहा था, क्वेश्चनिंग कर रहा था लोगों से। तो सोक्रेटिक डायलॉग के जरिए वो लोगों को क्या कर रहा था, चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा था। उन्होंने उसने उसका एक कोट है, कहता है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। उसका एक कोट है, कहता है डाउट इज ओरिजिन ऑफ नॉलेज। आप किसी भी चीज पे शक करो तो नई चीजें निकल आती हैं। कोई भी चीज अगर हजारों साल से भी एक लाइन कोई पढ़ के सुना रहा है ना, उस पर थोड़ा सा डाउट करो, एक कोई पर्सपेक्टिव उधर से निकल आएगा। कोई आप रिलीजियस डिस्कोर्स ले लें, कोई आप सोशल डिस्कोर्स ले लें, कोई आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स ले लें, कोई भी आप उठा लें कोई चीज, जब आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे, जब आप उसको क्वेश्चन करेंगे, जब आप उसके ऊपर डाउट करेंगे, तो आपको एक नई चीज उसके अंदर से निकल आएगी। जो अथॉरिटेरियन सोसाइटी होती है, या जो अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन सोसाइटी या अथॉरिटेरियन पीपल होते हैं, वो कभी भी आपको सवाल नहीं करने देते। वो कहते हैं बस जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलने दे। तो सोक्रेटिस ने अथॉरिटी को क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चन की वजह से उसका ट्रायल हुआ और अल्टीमेटली उसको हेमलॉक पिला दिया। और उस वक्त उसके जो शागिर्द थे उन्होंने कहा कि आप या बैनिश हो जाएं, यानी वो उन्होंने सिफारिश की
तो बादशाह ने कहा या तो बैनिश कर देते हैं हम इसको, तो या ये हेमलॉक पी ले, क्योंकि इसने यूथ को वर्गलाया है और यूथ को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। उन्होंने उसे मजबूर किया और उसने हेमलॉक पी लिया। लेकिन वो कहता है जी मैं अगर आज कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया तो आने वाले दौर में मुझे लोग ये लिखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया अपने टॉपिक से। मैंने जो रियलिटी की बुनियाद रखी, मैंने जो फलसफे की बुनियाद रखी, जो मैंने सोक्रेटिक डायलॉग की जो बुनियाद रखी, मैंने जो क्वेश्चनिंग का लोगों को कहा, मैं तो अपने मौकफ से भी हट गया। तो उसने उसने पहली दफा ये एक फाउंड किया क्रिटिसिज्म को, फिलॉसफी को, कि क्रिटिक जो है वो फिलॉसफी के जरिए दी जा सकती है। चीजों को हम फिलोसोफाइजिंग कर सकते हैं, चीजों को हम फिलोसॉफिकली देख सकते हैं, उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे नई मीनिंग निकाल सकते हैं, उसके ऊपर डाउट कर सकते हैं, उसको हम किसी नए एंगल से देख सकते हैं। उसके बाद उसका शागिर्द आया प्लेटो। प्लेटो ने उसके बाद फलसफे की बुनियाद रखी जिसे कहते हैं आइडियलिज्म। जब आप फलसफा पढ़ते हैं, जब आप क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, तो आपको पहले ये चीजें बताई जाती हैं, ये लोग बताए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद उसका शागिर्द आता है प्लेटो। प्लेटो अपनी प्लेटो अकेडमी की फाउंडेशन रखता है, लोग बड़ी बड़ी दूर से पढ़ने आते हैं। अरिस्टोटल और इस तरह के अरिस्टोफैन और बड़े बड़े जो लोग हैं वो उसके पास पढ़ने आते हैं, उसके नॉलेज को एंजॉय करते हैं, वो उनको टीच करता है। और कई साल तक अरिस्टोटल इसका शागिर्द रहता है। अरिस्टोटल और प्लेटो के आइडियलिज्म और रियलिज्म पे कुछ कंट्राडिक्शन आ जाती हैं। अरिस्टोटल प्लेटो की लिखी हुई बुक रिपब्लिक को चैलेंज करता है और वो एक अपनी बुक लिखता है पॉलिटिक्स। उसके अंदर वो फलसफे के बारे में, वो रेटरिक के बारे में, वो परसुएसिव लैंग्वेज के बारे में, वो बहुत सारी लिटरेचर के बारे में, पोइट्री के बारे में और बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में वो डिस्कस करता है। और अपनी पॉलिटिक्स के अंदर वो डिस्कार्ड करता है अपने उस्ताद के व्यू को कि रियलिटी जो है वो आइडियाज के अंदर है। वो कहता है रियलिटी वो है जो हमें सामने नजर आ रही है, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड जो हमारे सामने है ये रियलिटी है। वो कहता था कि आइडिया रियलिटी। उसका फलसफा पढ़े तो वो भी सच्चा लगता है। वो कहता है कि बहुत सारी चीजें हमें नजर नहीं आती, प्लेटो कहता है, लेकिन उनका वजूद है। आइडिया आपको नजर नहीं आते, लेकिन आइडिया से बिल्डिंगें खड़ी हो गई। आइडिया आपको नजर नहीं आता, आइडिया से जहाज बन गए। आइडिया आपको नजर नहीं आता, आइडिया से आपने इंजीनियरिंग कर ली। आइडिया आपको नजर नहीं आता, आपने बड़ी बड़ी डिग्रीज कर ली। आइडियाज आपको नजर नहीं आ रहे, आइडिया से लोगों ने मेटावर्स बना लिया, आइडिया से ब्लॉकचेन बना ली, आइडिया से कंप्यूटर जनरेट कर लिया। तो आइडिया ही सब कुछ होता है, रियलिटी आइडियाज है, आइडियलिज्म ही सब कुछ है, आइडिया की बेस पे सब कुछ बनता है। लेकिन अरिस्टोटल कहता है नो, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि जो चीज हमारे सामने है वही रियलिटी है। जो मैं देख नहीं सकता या समवेयर है या मेरी नजरों से दूर है या मुझे नजर ही नहीं आ रही, मैं उसे फिजिकली कंक्रीट लेवल पे नहीं देख सकता, वो रियलिटी नहीं है। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान एक मतलब वो उसकी रिबटल देता है। अरे पॉलिटिक्स जो है वो एक रिबटल है, एक रिएक्शन है रिपब्लिक का, पॉलिटिक्स। तो वो बुक हमारे कोर्स में है, हम उसको देखेंगे। अच्छा, एक और इंग्लिश क्रिटिक है, उसका नाम है फिलिप सिडनी, जो कि जिसकी 31 ईयर में एज में डेथ हो गई थी। ये पोएट्री को एक और नाम देता है, कहता है इज पोएट्री इज नॉट व्हाट वाज एंड व्हाट इज एंड व्हाट वाज। पोएट्री टीचेस यू थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड डिलाइट। जब आप पोएट्री करते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी को फन के जरिए टीच कर दें, किसी को अम्यूजमेंट के जरिए टीच कर दें। एक आप ऐसी बुक लिख सकते हैं जिसमें फन भी हो, अम्यूजमेंट भी हो, साथ वो पढ़ भी ले। आप एक ऐसी मूवी बना सकते हैं पोएट्री की, एपिक जैसे होती है, तो आप उसके अंदर फन भी हो, बुक सॉन्ग भी हो और साथ फन भी चलता रहे, साथ वो सीख भी जाए। आप कॉमेडी के जरिए टीच कर सकते हैं, आप पोएट्री के जरिए, आप ट्रेजिडी के जरिए टीच कर सकते हैं, आप कॉमेडी ट्रेजी कॉमेडी के जरिए टीच कर सकते हैं। तो पोएट्री इज इंस्ट्रक्शन, इट गिव्स इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट। यानी इंस्ट्रक्शन के साथ, टीचिंग के साथ साथ ये डिलाइट भी देती है, अम्यूजमेंट भी देती है, फन भी हो जाता है। तो इंसान जल्दी से सीख लेता है और साथ इमेजेस भी लोगों को जाती हैं, पिक्चर्स भी, उसमें वी ए के मॉडल भी आ जाता है, विजुअल भी आ जाता है, ऑडिटरी भी आ जाता है, कैनेस्थेटिक लेवल पे भी चीजें इंसान के ब्रेन तक जाती हैं। मतलब अब मॉडर्न सेंस में हम इनसे ये चीजें भी ले सकते हैं, इनको डिस्कस कर सकते हैं।
नहीं जी, ये तो है एक फाउंडेशन जो मैंने आपको टीच की। अच्छा, जब भी हम क्रिटिसिज्म को देखते हैं तो क्रिटिसिज्म को एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म और अंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के लेवल पे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जब हम एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म का मतलब यह है कि जब भी आपने पीस ऑफ लिटरेचर जॉनरा को क्रिटिसाइज करना है, उसकी जजमेंट देनी है, उसको वैल्यूएट करना है, उसको क्रिटिसाइज करना है, तो हमें उसकी उसकी बैकग्राउंड, उस राइटर के बैकग्राउंड, उसका नॉलेज, उसकी ट्रेडिशन, उसका बैकग्राउंड नॉलेज, उसका प्रोफाइल, वो सारी चीजें अगर हम देख रहे हैं और फिर पीस ऑफ आर्ट को हम अवेल्युएट कर रहे हैं उसकी एज को, और उस खास स्पेसिफिक एज के लिटरेचर को जब हम देख के किसी चीज को वैल्यूएट करते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा था, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म। बात समझ आ गई कि जब भी हम किसी पीस ऑफ आर्ट को, किसी पीस ऑफ जॉनरा को इस लेवल पे क्रिटिसाइज करते हैं कि उसकी बैकग्राउंड नॉलेज, उसका प्रोफाइल, उसका कन्वेंशनल नॉलेज, और उस लिटरेचर की पर्टिकुलर एज, और वो सारी चीजें अपने माइंड में रख के उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म। अब एक और होता है अंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। अंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि अंटोलॉजिकल लेवल पे क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को उस वर्क को हम जस्ट देखते हैं, उस वर्क को हम देखते हैं उसी लेवल पे, उस टेक्स्ट को स्पेसिफिक को देख के हम जब किसी भी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब हम किसी चीज को इस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम जस्ट उस टेक्स्ट को ही अपने माइंड में रखते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ऐसी क्रिटिसिज्म को कहते हैं अंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। मतलब एक पीस ऑफ टेक्स्ट है, हमें अब उसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं, उस टेक्स्ट को लेते हैं और उसके अंदर जो मेटाफर्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनको ही हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ही हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसे क्रिटिसिज्म को कहते हैं अंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म को जब हम देखते हैं तो क्रिटिसिज्म में डिफरेंट चीजों, डिफरेंट एजेस भी हैं, और डिफरेंट एजेस के लिहाज से उस क्रिटिसिज्म को अवेल्युएट किया जा सकता है। एक है हेलेनिक फेस ऑफ क्रिटिसिज्म। अब हेलेनिक फेस ऑफ क्रिटिसिज्म में जो ग्रीक मिथोलॉजी है, ग्रीक सिंबल्स हैं, ग्रीक कल्चर है, ग्रीक लिटरेचर है, उससे उसके लिहाज से जो हम पीस ऑफ योनरा को अवेल्युएट करते हैं वो हेलेनिक या हेलेनिक फेज कहलाता है। उसके बाद ग्रीको रोमन क्रिटिसिज्म आ जाती है। जब हम ग्रीको रोमन क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो ग्रीको रोमन में प्लेटो का जो वर्क है, और प्लेटो और उसके बाद अरिस्टोटल का वर्क है, और स्पेशली जो मेन है वो पोएटिक्स है। और पोएटिक्स को आपको पता है कि उसके 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं जो अरिस्टोटल ने बयान किया पोएटिक्स के अंदर। हमारे कोर्स में भी है, हम उनको डिस्कस करेंगे। मिडिवल एज की क्रिटिसिज्म है। मिडिवल एज में एक खास किस्म की, जब भी किसी लिटरेचर को अवेल्युएट किया जाता था तो आपको पता है कि मिडिवल एज में रिलीजन जो था वो डोमिनेट करता था, चर्च फैसले करता था। तो जो जो उस वक्त का क्रिटिसिज्म होगा डेफिनेटली वो चर्च से रिलेटेड होगा, उसको ही क्रिटिसाइज किया जाएगा। रेनेसेंस एज में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन करने लग गए लोग। तो उसमें एक चीज थी कि इंसान को अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। रेनेसेंस एज की जो स्पिरिट है, अगर आप रेनेसेंस एज में देखें तो सारी चीजें इंसान के अंदर ही एक्सप्लोर होती हैं। सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो क्या है? नॉलेज है। सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो इंसान खुद है, आई है, और उसको ही एक्सप्लोर करना है, ह्यूमन को ही एक्सप्लोर करना है। तो इसमें जो भी आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा वो इंसानों के वर्क पे मिलेगा, इंसानों के ऊपर क्रिटिसिज्म मिलेगा, लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म मिलेगा रेनेसेंस एज में। तो न्यू क्लासिकल एज में आपको पता है कि क्लासिकल एज के जो रोमन ग्रीक्स के रूल्स थे उनको दोबारा से फॉलो किया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है न्यू क्लासिकल एज। फिर हमारे पास आ जाता है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में हमारे पास वर्ड्सवर्थ एज अ क्रिटिक है,
कॉलरिज एज अ क्रिटिक है, पीबी शैले एज अ क्रिटिक है, जॉन कीट्स एज अ क्रिटिक भी है। ये क्या करते हैं, कहते हैं कि पोएट्री जो है, अगर कोई बंदा पोएट्री करना चाहता है तो वो हार्ट से करे। आप जॉन कीट्स का एक कोट मैं आपको सुना देता हूं। वो कहता है कि आई बिलीव इन द होलीनेस ऑफ द हार्ट। जॉन कीट्स सेड कि अगर पोएट्री आपके हार्ट से नहीं आ रही, दिमाग से आ रही है, तो ऐसी पोएट्री को करने का कोई फायदा नहीं है, या ऐसी पोएट्री लिखने का कोई फायदा नहीं है। जो आप, अगर आप पोएट्री को रैशनलिस्ट व्यू से देखते हैं, क्योंकि पोएट्री तो इमोशन की गेम है, पोएट्री तो फीलिंग की गेम है। अगर आप इसके अंदर रियलिज्म ले आएंगे, आप इसके अंदर रियलिटी डिस्कस करते फिरेंगे, ऑब्जेक्टिविटी डिस्कस करते फिरेंगे, तो वो तो साइंस की फील्ड है। तो ये पोएट्री जो है एक आर्ट है, एंड लेट्स टेक आर्ट फॉर आर्ट से, हमें आर्ट को आर्ट ही रहने देना चाहिए। तो ये इस तरह का पोएट था। तो आपको जितने भी पोएट मिलेंगे, कॉलरिज मिलेगा, वो सारे इमेजिनेशन पे बात करेंगे, वो इंसान की फीलिंग पे बात करेंगे। जहां जहां इंसान की फीलिंग जाएगी, वहां वहां वो अपने आप को डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, आगे देखें, विक्टोरियन एज के अंदर जो पोइट्री है वो मैथ्यू आर्नल्ड की पोइट्री है और वाल्टर पीटर की पोइट्री है। ये लोग भी उस वक्त के कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म दिया है विक्टोरियन एज के अंदर। उसके बाद मॉडर्न एज की क्रिटिक, जो एज के क्रिटिक हैं, वो हैं टी एस इलियट हैं और आई ए रिचर्ड हैं, जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म की जो बुनियाद है, वो मतलब जहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है, वो कहते हैं जी वो भी टी एस इलियट के कॉन्सेप्ट से लिया गया है कि इंसान को ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। अगर एक एक अच्छे क्रिटिक को, एक अच्छे राइटर को, एक अच्छे पोएट को, एक अच्छे लिखने वाले को गॉड की तरह होना चाहिए। गॉड हर जगह मौजूद है अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट, लेकिन नजर कहीं भी नहीं आता। लेकिन हर जगह आपकी एग्जिस्टेंस हो, पूरे लिटरेचर में, आप पूरी पोएट्री में हूं, लेकिन कोई आपको देख ना सके कि आप पोएट्री के अंदर सिर्फ आप ही हैं, तो इसको वो कहता है कि ये है न्यू क्रिटिसिज्म। यही एक कहता है कि अच्छे क्रिटिक की निशानी है। तो हॉरेस लॉन्जाइनस और क्विंटेलियंस, ये हैं जी ग्रीको रोमन दौर के। ये भी हम पढ़ेंगे हमारे सरगोदा यूनिवर्सिटी के कोर्स में। लॉन्जाइनस है, इसको भी हम देखेंगे। आगे आ जाए जी, टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आ भी जाता है कि टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म की टाइप्स कौन कौन सी है। पहला जी, आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म। आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म जो है ना, इसका मतलब लिख लें, आपके कोई क्वेश्चन आ जाएगा इससे। आर्कीटाइपल का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मॉडल, प्रोटोटाइप, ठीक है, मिथ, सिंबल्स। ऐसी क्रिटिसिज्म एक मॉडल को सामने रख के, मिथ को सामने रख के, सिंबल को सामने रख के, एक खास स्ट्रक्चर को सामने रख के जब किसी चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको वैल्यूएट किया जाता है, उसको कहते हैं आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म। इसमें भी बहुत सारे राइटर्स ने इसमें काम किया है। तो उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अपने माइंड में रखेंगे कि ये लोग जो हैं एक स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के साथ चलते हैं, कि हर चीज का एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बिल्डिंग को देखना चाहें, तो बिल्डिंग को उसके स्ट्रक्चर से देखेंगे, आसानी से समझ आ जाएगी किससे स्टार्ट हुआ, कहाँ किचन है इसका, कहाँ इसका स्टडी रूम है, कहाँ इसका हॉल है, कहाँ पे इसका वो दूसरे कमरे हैं। तो उसको हम आसानी से, अगर एक ईंट को मैं उठा लूं, तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिल्डिंग। तो वो कहते हैं कि दुनिया की